Let us see the next question. A US based company is planning to set up a subsidiary company in India where so far it was exporting. In view of growing demand for its product and competition from other US based companies, तो एक यूएसए का कंपनी है जो अपना एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया में डिमांड इंक्रीज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम दूसरा जो यूएस कंपनीज है वो भी वहां पे जाके बिजनेस करना दैट इज बिजनेस कर रहा है। सो दैट इज अ ग्रेट कॉम्पिटिशन। The initial project cost consisting of plant and machinery, including installation, is estimated to be $490 million. The net working capital are estimated $60 million. The company follows straight line method of depreciation. Currently, the company is exporting 2 million units every year at the price of $90. Its variable cost is $50. The chief financial officer of the company has estimated the following operating cost and other data in respect of the proposed project. Variable operating cost will be $30 per unit of the production. Additional cash fixed cost will be $30 million per annum, and projects highlight the portion share of allocated fixed cost will be $3 million per annum based on principle of ability to share. Useful life of the proposed plant 5 years with no salvage value. Production capacity of the product that is proposed project in India will be 5 million units. Highlight the portion existing working capital. Existing working capital investment for the production and sales of 2 million units through export was $25 million. Export of the product in the coming year will decrease to 1.5 million units provided the company does not set up subsidiary company in India. In view of presence of the competing other US based companies that are in the process of setting up their subsidiaries in India. Income tax rate is given as 35% and the required rate of return for such project is given as 12%. तो इनकम टैक्स का रेट दे रखा है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। Assuming that there will be no variation in the exchange rate of the two currencies and all profits will be repatriated as there will be no withholding tax. Estimate NPV of the proposed project in India and give your advice. Present value factor at 12% is provided to us starting from end of year 1 to end of year 5. I request all of you to properly go through the question. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का। क्वेश्चन का सबसे पहले मैं रिव्यू थोड़ा दे देता हूं कि वी हैव टू टेक द डिसीजन फ्रॉम द यूएस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और हमको ऐसा दे रखा है दैट से द यूएस का जो कंपनी है वो ऐसा सोच रहे हैं दैट से लेट अस गो टू इंडिया एंड डू बिजनेस इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स से फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का क्या होगा इन्वेस्टमेंट और अभी कितना वो दे रखा है, सेलिंग प्राइस अभी का दे रखा है 90, बाद का नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू मेक एन अजम्पशन दैट्स हमारा सेलिंग प्राइस सेम रहेगा यानी 90 का 90 ही रहेगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अभी का दे रखा है 50, बाद का दे रखा है 30, कैश फिक्स कॉस्ट दे रखा है, अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट दे रखा है,
लाइफ दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन स्पीक्स दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज दिस मच, ऐसा दे रखा है. इट इज 5 मिलियन यूनिट्स. बट अनफॉर्चुनेटली हमको हम लोग कितना नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करेंगे वो नहीं दे रखा है. सो वी विल अज्यूम दैट से हमारा जो सेल्स यूनिट्स होगा वो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी के जितना ही होगा, यानी कि 5 मिलियन यूनिट्स. ऐसा अज्यूम करके हम लोग आंसर करेंगे. ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन we will be adopting a kind of incremental approach for the purpose of decision making. यानी हम लोग ऐसा सोचेंगे, let's say let us go over there and do business instead of selling the goods from US. यहाँ से एक्सपोर्ट करने की जगह वहां पे जाके बिजनेस करते हैं. ऐसा हम लोग सोच के आंसर कैलकुलेट करेंगे. I request all of you to write an answer along with me. First point, in this question, from a US company point of view, comma, we have to decide whether to go to India for doing business or continue with export from US. Second point, we will adopt an incremental approach for decision making. That is what we understand. यहाँ पर फ्रेंड्स हमको कुछ कन्वर्जन का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा वैल्यूज हमको डॉलर में दे रखा है और दूसरा रुपीस और डॉलर का कोई रेट भी नहीं दे रखा है. सो इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग. स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट क्या होगा. फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, वी आर अडॉप्टिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर हम लोग नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 60. हाउएवर वी ऑलरेडी हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 25. यानी नए प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट किए दैट इज करेंगे तो हमको एडिशनल 35 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. किस में? वर्किंग कैपिटल में. उसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा 490 का, यानी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 525 का. सो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट एन आंसर. एक आएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन अमाउंट ऑफ $490 मिलियन. प्लस हम लोग करेंगे वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, उसमें किया जाएगा 60 माइनस 25, यानी हमको एडिशनल 35 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 525 मिलियन का. ऐसा करके हम लोग स्टेप नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करेंगे. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि स्टेप नंबर 2 डिप्रीशिएशन क्या आएगा. चलो राइट एन आंसर. स्टेप नंबर 2,
डिप्रीशिएशन। फ्रेंड्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है लेट्स से द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डिप्रीशिएशन इज सपोज्ड टू बी फॉलोड, ऐसा हमको दे रखा है। एडिशनली द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। लेट्स से हमको एट द एंड ऑफ द लाइफ से कुछ भी हमको सैल्वेज वैल्यू मिलेगा नहीं, और लाइफ 5 साल है। So we are required to make the calculation of the depreciation as cost divided by number of years. What is the cost? Cost is 490 million divided by how many years? It is 5. So 490 divided by 5, that comes to $98 million. That is the way the step number 2 depreciation will be calculated. उसके बाद स्टेप नंबर 3, उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में बेसिकली से एक तो सेल वैल्यू ऑफ द मशीनरी आता है, पर वो तो जीरो है यहाँ पे, तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल का रिकवरी आएगा। So there is a working capital recovery. It is 35 million और ये हमको मिलेगा ईयर 5 एंड में। ये 35 मिलियन जो हमने ईयर 0 में इन्वेस्ट किया था। रिमेंबर फ्रेंड्स, इट इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। स्टेप नंबर 4, उसमें हम लोग रिकरिंग कैश फ्लो करेंगे। रिकरिंग कैश फ्लो फ्रेंड्स हमको सिर्फ ईयर 1 का ही करना है, क्योंकि जो ईयर 1 का कैश फ्लो वही का वही सेकेंड ईयर से लेके 4th ईयर तक का है। मुझे फर्स्ट ईयर का रिकरिंग कैश फ्लो चैट बॉक्स में बताइए। चलो रिकरिंग कैश फ्लो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कॉलम नंबर 1 होगा हमारा पर्टिकुलर्स का, और कॉलम नंबर 2 होगा हमारा आंसर का। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ साथ ही आंसर लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स। जैसे हमने डिस्कस किया, वी मेक एन अजम्पशन कि जितना भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना ही हमारा प्रोडक्शन होगा और वो हम लोग बेच देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 मिलियन इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, इनटू लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन दे रखा है, द सेलिंग प्राइस इज 90, और रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारा सीधा सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, अगेन उसमें हम लोग लिखेंगे 5 मिलियन, और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली द वेरिएबल कॉस्ट इज नाउ ओनली 30, सो दिस इज गोइंग टू बी 150। उसके बाद कैश फिक्स कॉस्ट that is provided to us as 30 million, वो हमको से अगेन क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्टली कैश फिक्स कॉस्ट। उसके बाद हमको अलोकेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट दे रखा है, तो कोई भी अलोकेशन है, एब्सॉर्प्शन है, चार्ज है, रिकवरी है, उसका हमको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से दे आर नॉट इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, इसलिए हम लोग ऐसा कोई भी अलोकेशन का इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद डिप्रीशिएशन जो हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, द अमाउंट ऑफ द डिप्रीशिएशन इज 98 मिलियन। नाउ यहां पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। सी वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हम यानी यूएस कंपनी हम लोग इंडिया जाके बिजनेस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो एक्सपोर्ट बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, और वहां से जो हम लोग कंट्रीब्यूशन अभी कमा रहे हैं ना, वो कंट्रीब्यूशन हमको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 90, उसका वेरिएबल कॉस्ट हमको इंपॉर्टेंटली दे रखा है 50, और इंपॉर्टेंटली हमको ऐसा दे रखा है कि अगर हम लोग वहां पे जाके बिजनेस नहीं करेंगे तो हमारा सेल्स हो जाएगा 1.5 मिलियन।
सो व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, दैट से वी अंडरस्टैंड ये 1.5 मिलियन का इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो रेलेवेंट है। जो क्वेश्चन में हमको ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, दैट इज से द 2 मिलियन यूनिट्स, दैट इज प्रोवाइडेड जस्ट टू मिसगाइड अस। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट से फ्यूचर में मेरे को सेल्स क्या होगा 1.5 का, तो वो हमको रेलेवेंट है। सो 1.5 इज रेलेवेंट एंड नॉट 2। सो वी अंडरस्टैंड इट इज 90 माइनस 50, यानी कितना होगा 40। 40 इंटू 1.5 यानी कितना होगा 60। तो ये 60 बिलियन का कंट्रीब्यूशन जो हमको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, एंड लॉस ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज कैश आउटफ्लो, ऐसा हम लोग समझते हैं। अच्छा, फिर हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड इट इज 450 माइनस 150 माइनस 30 माइनस 98 माइनस 60। सो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हो जाएगा 112 मिलियन। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से टैक्स को डिडक्ट करेंगे, लेस टैक्स। इनकम टैक्स का रेट हमको दे रखा है क्वेश्चन में 30%, आई एम सॉरी 35%। सो इनकम टैक्स इज 35%। 112 into 35%, that comes to 39.2। फिर हमारे पास बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। सो 112 माइनस 39.2, दैट इज 72.8। उसमें हम लोग ऐड करेंगे डिप्रीशिएशन। क्यों? क्योंकि डिप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। सो द अमाउंट ऑफ द डिप्रीशिएशन इज 98 प्लस 98, तो हमारा से एनुअल CFAT हो जाएगा 170.80। This is the annual cash flow after taxes, and definitely friends we are going to receive this from end of year 1 to end of year 5. I request all of you to make the that is take the working of the annual CFAT. उसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हम लोग NPV का कैलकुलेशन करेंगे। क्या होगा फ्रेंड्स, ईयर 1 टू ईयर 4 और 5th ईयर सब कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाएगा और उसके बेसिस से NPV किया जाएगा। I request you to write down answer. Year 0, year 1 to year 4 and 5th year कैश फ्लो मैं लिख रहा हूँ। ईयर 0 में से देयर इज अ कैश आउटफ्लो ऑफ 525 मिलियन। ईयर 1 टू ईयर 4 एनुअल कैश फ्लो इज 170.8। लास्ट ईयर में हमको 170.8 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा हमको टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा। टर्मिनल कैश फ्लो विल बी 35, so plus 35, that is 205.8। इन सबको हम लोग डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज एट द रेट ऑफ 12%। ईयर 0 का फैक्टर है 1। फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का फैक्टर का समेशन किया जाएगा। क्वेश्चन में जैसे हमको फैक्टर्स दे रखा है, फर्स्ट ईयर का 8929, सेकेंड ईयर का 7972, 7118, 6355 और लास्ट ईयर का फैक्टर है 0.5674। So it is 8929 plus 7972, 7118, 6355, so 3.0374। और उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0 का कैश आउटफ्लो है 525। ईयर 1 टू ईयर 4 का 170.8 इंटू 3.0374, 518.79। लास्ट ईयर में हमको मिलेगा 205.8 इंटू 0.5674, 116.77।
518.79 plus 116.77 minus 525, so 110 110.56, ऐसा करके हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे. Since NPV is positive, the US company is advised to go to India for the purpose of doing business. चलो एक छोटा सा समरी पूरे आंसर का. फ्रेंड्स, हमको अभी ऐसा दे रखा है कि अभी हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी हमने 25 मिलियन का कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है. सेलिंग प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग अभी बेचते हैं और फ्यूचर में बेचेंगे, उसका इंफॉर्मेशन दे रखा है. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से द कंपनी इज नाउ कंसीडरिंग दैट से लेट अस नॉट एक्सपोर्ट द गुड्स फ्रॉम हियर एंड लेट अस गो ओवर देयर एंड डू बिजनेस. उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, कैश फिक्स कॉस्ट दे रखा है. मिसगाइड करने के लिए हमको अलोकेटेड ओवरहेड का इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसका कोई काम नहीं है, लाइफ दे रखा है और नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है. तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंटली इंक्रीमेंटल अप्रोच अडॉप्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो फ्रेश ही करना पड़ेगा. वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने 25 का करके रखा है. नया प्रोजेक्ट लेंगे तो 60 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. यानी नए प्रोजेक्ट में हमको नए प्रोजेक्ट की वजह से एडिशनल 35 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. डिप्रीशिएशन बहुत आसान है, कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स. एसएलएम है और दूसरा सैल्वेज वैल्यू नहीं है. टर्मिनल कैश फ्लो में सिर्फ वर्किंग कैपिटल का रिकवरी आएगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 35 मिलियन जो कि हमको 5th ईयर के एंड में मिलेगा. रिकरिंग कैश फ्लो में एक छोटा सा अजम्पशन क्या कि हमारा सेल्स यूनिट्स होगा 5 मिलियन जो कि हमको क्वेश्चन में हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखा है. वेरिएबल कॉस्ट इज वेरी सिंपल, कैश फिक्स कॉस्ट इज अगेन सिंपल, डिप्रीशिएशन हमने ऊपर कैलकुलेट कर दैट इज करके रखा है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्किंग जिसमें हम लोग लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन लिखते हैं. लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम लोग वहां पे जाके बिजनेस करेंगे तो यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट करके हम लोग जो कमा सकते थे वो नहीं कमाएंगे, एंड दैट लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी सद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पीबीटी आ गया, टैक्स आ गया, पीएटी आ गया, उसमें हमने डिप्रीशिएशन का एड बैक किया और उसके बेसिस से हमारा सीएफईटी आ गया. ये हमको सीएफईटी मिलेगा 5 साल के लिए, दैट इज ईयर 1 to ईयर 4 एंड 5th ईयर. लास्ट ईयर में हमको वर्किंग कैपिटल का रिकवरी होगा. इन सबको हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया और उसके बेसिस से हमने एनपीवी का कैलकुलेशन किया. सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. चलो रिटर्न आंसर. Decision as NPV is positive, comma US company should accept the project. Now कुछ पॉइंट्स में लिख पा रहा हूँ. फर्स्ट, any allocation, comma absorption, comma charge or recovery of overhead is not an incremental cost, comma so it does not form part of
decision making. Full stop. Second point, importantly, we have to consider loss of contribution in decision making. Full stop. In future, the company will sell 1.5 million units, comma, taking that into account, opportunity cost is calculated. Full stop. Third point, in respect of working capital, comma, we have to consider only incremental working capital. Full stop.